Hello students, I hope you are doing well and welcome back to our online class. Today we are going to learn about adjective class 8 chapter number 4 English grammar. Okay, so last video we already learned that what is pronouns. Pronoun basically used instead of noun. And today we are going to learn about adjective. What is an adjective? Why adjective is so important in English grammar? Today we are going to discuss. And what are the kinds adjective has, that also we are going to discuss. For any, especially in English grammar, for any topics, if you want to learn very well, you should go through the definition of any chapter. Especially, suppose if we are learning today adjective, the first things you supposed to know is that definition of adjectives. The definition adjective will clear you throughout the lesson. What the lesson mean or what the lesson going to teach us. So first of all, we have to revise or memorize about the adjective or definition. Then only you will revise and memorize everything whatever I am going to teach you. Otherwise, you can't learn properly what is an adjective. So please students, I just refer you to revise the definition of adjective. That will clear you to understand all the examples and everything written in your book, especially chapter number 4. Okay, so please look at your books. I am going to read for you what is an adjective. So my dear children, I am going to explain the definition of adjective. As I mentioned that without knowing definition of adjective, you can't understand the examples that I am written here or the kinds of adjective that I am going to explain you. So first of all, you have to understand the definition of adjective. So I am going to repeat or just going to read for you. So please listen me very carefully. What is an adjective? An adjective is a word used to qualify or describe a noun or a pronoun. So my dear children, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है. ठीक है, जैसे हमने प्रोनाउंस में देखा कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले यूज होता है. देन द सेम मैनर एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड स्पेशली जो है वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है. कैसे बताता है? ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में देख रहे होंगे पेज नंबर 23 एज ए पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है. जो ब्लैक जो लेटर में लिखा हुआ है, जो हाइलाइटेड वर्ड्स है वो एडजेक्टिव है. ठीक है, आप उसको घर में रीड कर सकते हो. देन आई हैव रिटन टू एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटर वे ऑफ व्हाट इज एन एडजेक्टिव. ठीक है, कोलकाता इज ए बिग सिटी. स्टूडेंट्स, कैन यू गेस, कैन यू टेल मी वेयर द नाउन इज यूज्ड एंड द वर्ड एडजेक्टिव इज क्वालिफाइंग अ नाउन? एनीबॉडी? ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वन. ठीक है, कोलकाता इज अ बिग सिटी. ठीक है, सिटी यानी कि प्लेस. हमने देखा नाउन में क्या देखा था कि नाउन इज अ वर्ड दैट नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग इज ए नाउन. ठीक है, तो नाउन क्या है? प्लेस में आता है, यानी सिटी यानी कि प्लेस है. तो एडजेक्टिव इसमें क्या है? बिग, बड़ा. ठीक है, किसके क्वालिफाई बता रहा है? नाउन की यानी कि सिटी की क्वालिफाई बता रहा है. तो इसलिए क्या हो गया? कोलकाता इज अ बिग सिटी. ठीक है, देखो शहर तो हर जगह पे होता है, लेकिन छोटा बड़ा जो होता है वो कहीं ना कहीं जो नाउन को डिस्क्राइब करता है. सेमिनार इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे, कोलकाता इज अ बिग सिटी यानी कि बिग जो है एडजेक्टिव है, देन सिटी इज ए नाउन. सो बिग सिटी यानी कि नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है. ठीक है, the same manner we can see the second examples. The river usually has enough water throughout the years. जो नदी में जो पानी है साल भर में मतलब काफी पानी होता है, मतलब पर्याप्त पानी होता है. ठीक है, तो रिवर नाउन है. ठीक है, और enough जो है वो नाउन की विशेषता को बता रहा है. पर्याप्त मात्रा में जो पानी होता है नदी में साल भर में, वो कहीं ना कहीं enough यहाँ पे जो है वो रिवर को डिस्क्राइब कर रहा है.
यानी कि रिवर की यानी कि नाउन की विशेषता को बता रहे, इसीलिए वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सो डियर चिल्ड्रंस, I hope you understood two example, and these two example will help you to understand what is an adjective. So now we are going to see the different kind of adjective. What are the adjective in English grammar you have, and why you should learn this kind of adjective, and why it is important to study. So please look at me and listen me as I am going to explain you the kinds of adjective. So my dear children, as I mentioned that here in your board, kinds of adjective. There are 5 kinds of adjective that we are going to describe. Okay. So let's start one by one. The first one is adjective of quality. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है उसको हम जो है देखेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग्स। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो किसी भी व्यक्ति और किसी भी चीज की विशेषता को बताता है, चाहे वो थिंग्स की हो चाहे वो किसी पर्सन की हो। एडजेक्टिव क्वालिटी किसी भी थिंग्स या किसी भी पर्सन की विशेषता को बताता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स यू कैन सी इन योर बुक्स बिग सिटी। बिग सिटी, बिग यानी कि बड़ा, सिटी मतलब शहर। ठीक है, अब सिटी क्या है, नाउन। ठीक है, और बिग क्या है, उसकी खूबी बता रहा है कि शहर तो है, हर जगह पे सिटी तो होता है, लेकिन जो बिग जो है, बड़ा है, वो कहीं ना कहीं जो पर्सन यानी कि सॉरी प्ले नाउन की जो विशेषता को बताया जा रहा है। ठीक है, सो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये पर्सन या थिंग्स की हमेशा जो है क्वालिटी को बताता है। ठीक है, इन द सेम मैनर वी कैन सी ब्यूटीफुल रिवर। ठीक है, आप देखा होगा कि रिवर देखने में अच्छा तो होता है, लेकिन कुछ ऐसा रिवर भी होता है जो बिल्कुल ब्यूटीफुल होता है। रिवर एक नाउन है और इस नाउन की विशेषता को क्या बता रहा है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है। सो ये दो एग्जांपल्स जो है बहुत हेल्पफुल है आपके लिए समझने के लिए। द नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। पहले हमने देखा क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, जिनको बोलते हैं मात्रा। ठीक है, इंडिकेट हाउ मच ऑफ थिंग्स मीन। ठीक है, किसी भी वस्तु का कितना मतलब है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताता है। ठीक है, किसी भी चीज का कितना मतलब है या किसी भी पर्सन का कितना मतलब है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हमें सीखने मिलता है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन योर बुक्स लिटिल रेन। ठीक है, बारिश हो तो रहा है, लेकिन कितनी मात्रा में बारिश हो रहा है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में उसकी बरसात हो रही है। ठीक है, तो लिटिल क्या है, कहीं ना कहीं वो जो है थिंग्स कि मतलब को वो इंडिकेट कर रहा है कि बारिश होने का कितना असर यानी कि कितनी मात्रा में बारिश हो रहा है। In the same manner you can see the second example, enough water. ठीक है, enough water मतलब पर्याप्त पानी। ठीक है, एक मात्रा, पानी का मात्रा, पानी की जो एग्जैक्ट चीज को जो है वो क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब quality of a person or things, but the adjective of quantity only indicate things, यानी कि किसी भी वस्तु का कितना मतलब है वो इंडिकेट करता है। So let's come to the third one, adjective of number. What is an adjective of number? How we can identify the adjective of number? An adjective of number indicate how many of thing is meant. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि नंबर मतलब संख्या, संख्या जो है वो किसी चीज का मतलब कितना है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमें बताता है। ठीक है, अगर मेरे पास पेन है तो कितना है, 1 है या 2 है, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमें पता चलता है। ठीक है, या क्लासरूम में फैन है तो कितना है, 1 है या 2 है, 2 है, वो हमें साफ तौर से बताता है। ठीक है, सो यू कैन सी इन योर बुक्स 2 स्टेशन। ठीक है, तो जो नंबर बताया गया 2, वो क्या है, कहीं ना कहीं एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। स्टेशन की नंबर बताना वो क्या है, वो बिल्कुल जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है। सो माय डियर चिल्ड्रंस, एडजेक्टिव नंबर्स आर 3 kinds. The first one we saw that adjective of quality. Okay, the second one adjective of quantity,
एंड द थर्ड वन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। और एडजेक्टिव नंबर जो है वो डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड्स, विल डिस्कस व्हाट आर द काइंड्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर। द फर्स्ट वन इज डेफिनेट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव। डेफिनेट मतलब निश्चित संख्या, एडजेक्टिव का निश्चित संख्या क्या है। स्टेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति का एग्जैक्ट नंबर या थिंग्स का एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स यू कैन सी इन योर बुक्स देयर आर ऑफ टू काइंड्स, ठीक है। और डेफिनेट नंबर न्यूमेरल्स एडजेक्टिव जो है वो दो तरह की है। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। एडजेक्टिव ऑफ नंबर थ्री काइंड्स एंड डेफिनेट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव जो है वो टू काइंड्स, ठीक है। कौन कौन सा काइंड्स है, जस्ट आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। द कॉर्डिनल्स टेल अस द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स। द कॉर्डिनल्स होता है पहला जो काइंड्स है उसका कॉर्डिनल्स, जो किसी भी संख्या, किसी भी पर्सन की संख्या, किसी भी चीज की संख्या को बताना, ठीक है, वो ऑर्डिनल्स नंबर्स होता है। जैसे कि 30 इयर्स, ठीक है, एग्जैक्टली नंबर यहाँ पे बताया गया है 30 इयर्स, ठीक है। 12 डेज, ठीक है, ये क्या किस में आता है, ऑर्डिनल्स नंबर में आता है, ठीक है। प्लीज नो योर बुक्स, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24। ऑर्डिनल्स टेल अस द ऑर्डर of a person or thing in a series. For example, second example, 6th month of the years. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑर्डिनल्स है वो बिल्कुल किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति के ऑर्डर को बताता है, ठीक है। जैसे कि 6th month of the years, ठीक है, साल की 6वें महीने में। अब ये तो हमने देखा था, अब हम देखेंगे इनडेफिनेट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव। पहले हमने देखा डेफिनेट निश्चित संख्या, अब हम देखेंगे अनिश्चित संख्या क्या होता है। एडजेक्टिव का जो सेकंड पार्ट है, यानी सॉरी एडजेक्टिव ऑफ नंबर की सेकंड जो काइंड्स है वो है इनडेफिनेट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव। जैसे कि उसमें क्या क्या आता है, फ्यू चिल्ड्रन और मेनी पीपल, क्योंकि ये निश्चित नहीं है। जो डेफिनेट न्यूमेरल्स एडजेक्टिव में हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, ऑलराइट, बट in indefinite numerals adjective में there is no fixed number, ठीक है। For example, few children means somebody can doubt, ठीक है। अगर मुझे कोई पूछेगा कि few children, या मैं किसी को पूछूंगा कि few children वहां पे थे, किसी को भी, सुनने वालों को भी डाउट होगा कि few children मतलब एग्जैक्ट नंबर क्या हो सकता है, ठीक है। The similar second example, many people, अगर मैं बोलूंगा many people, so definitely people will miss started to कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे कि मैनी पीपल में कितने लोग हो सकते हैं। इन दो एग्जांपल में क्या है कि कोई भी नंबर की एग्जैक्ट नंबर नहीं है, इसलिए वो इंडेफिनेट क्या है, न्यूमेरल्स एडजेक्टिव। एंड द थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरल्स एडजेक्टिव, रेफर टू ईच वन ऑफ नंबर। ये जो है बिल्कुल हर नंबर को जो है वो रेफर करता है। जैसे कि एवरी चाइल्ड, जितने भी क्लास में, एवरी यूज करने का मतलब जितने भी क्लासरूम में सारे बच्चे, सारे चिल्ड्रन, उसमें सब आ जाते हैं, ठीक है। और ईच पर्सन, जितने भी क्लास के अंदर हो या बाहर हो, किसी को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, इट मींस आई एम जस्ट इंडिकेटिंग टू एवरी पर्सन, ऑलराइट। सो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरल्स एडजेक्टिव में ये होता है। सो नाउ we'll see the interrogative adjective and possessive adjective. Okay, demonstrative adjective, it is very easy, so that's why I did not write here. So my dear children, don't be confused. There are 6 kind of adjective, but demonstrative adjective very easy. Now, in demonstrative adjective only the words are used, these and those, that. So these are the demonstrative adjective. So please learn this demonstrative adjective at your home. Now I am going to explain you the 4 kinds of adjective. 4 kinds of adjective is interrogative adjective. Interrogative adjective मतलब प्रश्नवाचक adjective. Interrogative मतलब जिसमें WH यूज होता है, ठीक है। अब सबसे इजी जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। जहां पे हम W के साथ सवाल पूछते वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव माना जाता है। Which city, ठीक है, हमें किसी नाउन के बारे में मैं सवाल कर रहा हूं कि कौन सा शहर है, which city, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आता है।
whose पेन, बहुत सारे पेन यहाँ पे, किसी का पेन गिरा हुआ है और पेन को उठाया, मैं किसी से पूछ रहा हूँ इन द क्लासरूम that whose pen is this, it means it's come under the interrogative adjective because I'm asking questions. Okay, so the seminars, the last one we can see the possessive adjective. Possessive adjective means the things belong to us, the possession belong to us, जो चीज हमारा खुद का हो, ठीक है, उसको पॉसेसिव बोलते हैं। पॉसेसिव का मीनिंग होता है जो बिल्कुल जो चीज हमारा, जैसे पेन मेरे पास है तो ये पेन की अधिकार मेरे ऊपर ही हो सकता है, कोई भी मुझे नहीं बोल सकता पेन मेरा है, ठीक है। पॉसेसिव मतलब जो चीज बिलोंग टू माइन, ठीक है, जो चीज मेरा खुद का है। फॉर एग्जाम्पल, सो बिलोंगिंग और पोसेशंस, फॉर एग्जाम्पल माई सिटी, ठीक है, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं माई सिटी, यानी कि मैं अगर बोलूंगा माई सिटी, आई मीन्स मैं अधिकार के साथ बोल रहा हूं कि ये मेरा शहर है, ठीक है, क्योंकि पॉसेसिव एडजेक्टिव का मतलब ये होता है जो चीज पे हमारा अधिकार हो, जो चीज बिलोंग टू हमारा हो, ठीक है, वो क्या है, जो बिल्कुल पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। तो माई सिटी मीन्स क्या है कि ये मेरा शहर है, या आई एम जस्ट सेइंग दैट माय पेन, उसका मतलब कि मेरा पेन हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है। द लास्ट वन इज देयर हाउस, ठीक है, चार भाई बहन बैठे थे क्लास में, बोलूंगा कि देयर हाउस मतलब उन्हीं का ही घर हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थ्रू आउट दिस लेसन, as I am going to revise once again that if you want to understand the whole chapter of adjective, the first of all you have to understand the definition of adjective. Definition of adjective clear that an adjective is a word that describe noun or pronoun, ठीक है। adjective एक ऐसे शब्द है जो नाउन या pronoun के बारे में बता रहा है, ठीक है। और 6 kind of adjective, but I left one, ठीक है, और 5 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। प्लीज look at this video again and again and read by yourself and wait for the PDF that I'm going to give you very soon. Thank you and have a nice day.